whenever you say Om, you have to be in that mindset. Instead of thinking about something else, you should be communicating with the God. Oh dear God, I am chanting your name and I seek protection from you as you are the universal protector. So 3 बार लंबा सांस भर के ओम का उच्चारण करेंगे. So our Yajman for today is Zaina Dhawan, and we are gathered to celebrate her birthday. I would like to congratulate her, as my father just mentioned, that she chose to light the sacred fire instead of blowing out the candles. हमारे वैदिक कल्चर में, वैदिक लिटरेचर में एक मंत्र आता है, ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय. हे परमपिता परमात्मा, मुझे तमस से, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो, ना कि प्रकाश से अंधकार की ओर लेकर चलो. सो यज्ञ करना और अग्नि प्रज्वलन करना एक वैदिक रीति है, और अग्नि को बुझाना ये एक अवैदिक रीति है. ठीक है. सो एंड I know there are many young parents sitting in the room, and I would also like to congratulate many parents who are trying their level best to teach their children Vedic culture, our religious practices, our rituals, our values. And it is very important, especially once you are in a country where your child is exposed to some other cultures or some other people who may not be in alignment with you. So still you are trying for that. It's a huge compliment and huge achievement. And we do have some parents here who have done it successfully. तो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है. तो इसलिए मैं सुदीप्ति और करण को यही कहूँगा कि लगे रहो, अभी देयर आर माइल्स टू गो. और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है कि देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट डेज इन आवर लाइफ. द फर्स्ट व्हेन वी वर बॉर्न एंड द सेकंड व्हेन वी फाइंड आउट व्हाई. और अगर आपने अब्राहम मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, उसके पिरामिड में भी इट हैज़ बीन टोल्ड बाय मैस्लो that the ultimate goal of human life is self-actualization. So that is the ultimate goal. So जैसे अभी ज्ञानेश भैया ने बताया, we meet here every month from last 8 or 9 years. So due to COVID, we moved our sessions to Zoom, and then we started again in the Arya Samaj. So it's once a month ritual, and the goal is same to achieve. We are the seekers of that self-actualization. So we try our level best to discuss what has been told by our Rishi Munis, what has been told in our spiritual literature. So that is what we do on monthly basis. So of course you are more than welcome if you want to join us. So the next session will be on November 23rd. So today I know there are some people in the room who are Gen Z and Gen Alpha, so people who are under the age of 27. So I would like to focus little more on them. हमारा जो वैदिक
फिलॉसफी है, उसमें जो मनुष्य जीवन है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 stages. The first stage is brahmacharya, the second is grihasth, third is vanprasth, and fourth is sannyas. So the first stage, which is from year 0 to 25, is called celibacy or brahmacharya. So Ved कहता है कि there are 2 goals one have to achieve during brahmacharya. So 2 ऐसी चीज़ें हैं जो प्रत्येक ब्रह्मचारी को करनी चाहिए. Number 1, to gain and gather as much as knowledge and skills possible. Number 2, to work on the physical strength. Because the first stage is foundation for the next 3 stages. जो 0 to 25 में अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, वो 75 to 100 में बिना बीमारी के जी सकता है. जो 0 to 25 में अपना ध्यान नहीं रखता, उसके 75 to कई तो 75 पहुँचते भी नहीं, और अगर पहुँचते भी हैं तो वो उनकी सेहत उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि ये फाउंडेशन ईयर्स हैं. सो इसलिए सेलिबेसी जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है. सो वन हैज़ टू गैदर एज मच एज नॉलेज एंड स्किल सेट विच विल हेल्प टू सर्वाइव, आई शुड से थ्राइव. और नंबर 2, आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको भी गेन करना है. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस द 4 pillars, the 4 steps of success, जिससे आप ये दोनों अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं. और जो लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ पे नहीं भी हैं, उनके लिए भी ये चारों चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं. वो कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा. ठीक है. और हमारा तो कल्चर है ही बहुत बढ़िया. हमारा तो ये फर्स्ट और लास्ट बर्थ भी नहीं है. ठीक है ना. हम तो एक कॉन्टीन्यूस साइकिल में हैं. हमें तो दोबारा भी पैदा होना है, बार बार पैदा होना है. तो इसलिए हम जो संस्कार यहाँ से लेकर जाएंगे, वही संस्कार हमारे साथ अगले जन्मों में भी चलेंगे. इसीलिए कहा गया है कि इवन इफ इट इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, स्टिल नॉट बैड टू कीप ऑन एनहेंसिंग एंड इम्प्रूविंग योरसेल्फ. और हमारे तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का शायद एग्जाम्पल आता है, जिस दिन उनको फांसी देनी थी, तो फांसी से 2 घंटे पहले जब जेलर आके पूछते हैं आके कि आप को टाइम बताते हैं कि आपके 2 घंटे बचे हैं, तो he saw that he is doing push-ups. So he was totally shocked. He said, "Why are you doing push-ups as you know that you will die in 2 hours?" He said, "This is not my first and last birth. I will come again and I will be strong enough to fight again for the freedom of my country. So that is why I am doing push-ups." So इस थिंकिंग के साथ अगर हम जीते हैं, तभी हमारी प्रगति हो सकती है. सो जन्म दिवस एक ऐसा दिन है, बाकी कल्चर्स में इट इज़ अ डे टू एंजॉय, बट इन वैदिक कल्चर इट इज़ अ डे which brings lots of work and responsibilities for you. So you have to do lots of things. Number 1 is to take a resolution. जन्मदिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको कोई व्रत लेना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपना एक बेटर वर्जन बनाने के लिए. अगेन एक वेद मंत्र आता है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे आराध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि. हे परमपिता परमात्मा, मैं आज एक व्रत लेती हूँ और आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतना बल दीजिए कि मैं इस व्रत को पूरा कर सकूं, क्योंकि हे परमपिता परमात्मा, आप सबसे बड़े व्रतपति हैं. There is no one else who is better than God in terms of following his व्रत्स. ईश्वर का क्या व्रत है कि सूर्य उसी समय निकलेगा जो उसका समय है. अगर धरती उसी स्पीड से घूमेगी, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही रहेगी, फ्रिक्शन अपना काम करेगी. अगर ईश्वर के बनाए हुए सिस्टम में से एक भी चीज 1 मिनट के लिए भी आगे पीछे हो जाए तो ये सारी सृष्टि समाप्त हो सकती है. तो ईश्वर सभी व्रतों का स्वामी है. इसलिए जो भी व्यक्ति जिस चीज में बेस्ट है उसी से मांगो, किसी और से क्यों मांगो, उसी से प्रार्थना करो. तो इसलिए इस वेद मंत्र में कहा कि ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, कि हे व्रतपते परमपिता परमात्मा, आपसे बड़ा व्रतधारी और कोई नहीं है,
आप कृपया मुझे भी मेरा व्रत पालन करने की शक्ति दो। और ये मेरे पास लिखा हुआ है, आई गिव इट टू यू। आई हैव मोर पैम्फलेट्स विद दिस मंत्र एंड रेजोल्यूशन स्टेटमेंट। सो आप में से कोई भी ले सकता है। और इंटरेस्टिंगली इस कमरे में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका इस साल में जन्मदिन ना आया हो या ना आएगा। अगर कोई है तो बताए, दैट विल बी अ सरप्राइज। तो सभी का जन्मदिन साल में एक बार आता ही है, ठीक है। 29 तक को छोड़ दीजिए अगर कोई है बाई चांस। तो इसलिए हम सभी के लिए ये व्रत पत्र होना चाहिए, हम सभी को ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए। एंड देयर इज नो वन हु इज परफेक्ट, वी ऑल हैव लॉट्स ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो पिक what is most important, what is most useful, and try to work on it. So जो first step है वो तो है एक व्रत लेना, और जो दूसरा स्टेप है वह है डिसिप्लिन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अनुशासन। अब डिसिप्लिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, पहले डिसिप्लिन को डिफाइन कर लें। सो डिसिप्लिन की जो डेफिनेशन है वो है मेकिंग intentional mental and physical choices which are aligned to your goal. Making intentional mental and physical choices that are aligned to your goal. ये है discipline. And it is very unfortunate, people think that discipline is something which bounds you, which confines you. Rather, if you think deeply, discipline is something which gives you freedom. Discipline frees you from laziness. It frees you from failure. It gives you freedom from all your bad traits. So once you follow discipline, you will definitely be on the path of growth. So discipline को पालन करना मुश्किल हो सकता है, पर discipline बंधन का कारण नहीं है। Discipline तो मुक्ति का कारण है। अगर हम अनुशासन का पालन करते हैं तो डेफिनेटली अनुशासन में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, हार्ड वर्क, पेशेंस, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। सो क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपेबिलिटी एंड अचीवमेंट। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु वर कैपेबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, बट विदाउट डिसिप्लिन you cannot achieve those goals or those heights which you are capable of. You must have heard the word surviving, and you must have heard the word thriving. So the difference between surviving and thriving is the person who follows discipline will thrive, and the person who does not follow discipline will survive. So survive, strive, and thrive. If you strive, you will thrive. If you won't strive, you will just survive. So survive तो अन्य species भी कर रहे हैं, survive तो पशु पक्षी सब कर रहे हैं। तो हम, as we claim to be the most superior species on the earth, so we shouldn't be in the survival mode, we should be in the thriving mode. So उसके लिए the first thing is to take a resolution. The second step is to follow the discipline. And the third and the most important step is introspection. यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं जो अपने बिजनेस रन करते हैं या जो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपने सुना होगा कि एक क्वालिटी सर्कल बोलते हैं हम बिजनेसेस में, दैट पीपल सिट एवरी मॉर्निंग टू फाइंड आउट, आर वी फॉलोइंग अवर गोल्स, आर वी मीटिंग अवर टारगेट्स। तो उसके लिए बहुत सारी क्वालिटी कंट्रोल मीटिंग्स होती है, क्वालिटी सर्कल बोलते हैं, डेली ब्रीफ मीटिंग्स बोलते हैं, और KPI एस्टेब्लिश करते हैं कंपनीज में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और उनको बार बार पीरियडिकली मॉनिटर करते हैं कि क्या हम अपना गोल अचीव कर रहे हैं या नहीं। सो द सेम थिंग वी हैव टू डू। सो वी हैव टू ईच एंड एवरी डे इंट्रोस्पेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। अपना आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा आपको कि मैंने एक रेजोल्यूशन तो ले लिया, लेकिन क्या मैं उसको फॉलो भी कर रही हूँ या फॉलो भी कर रहा हूँ, और अगर कर रही हूँ तो कितनी सक्सेसफुल हूँ, कितना सक्सेसफुल हूँ उसमें। और एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई रेजोल्यूशन देते हैं, कोई गोल बनाते हैं, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। वो जनरल नहीं होना चाहिए, एंड देयर शुडंट बी एनी नेगेटिव स्टेटमेंट इन इट।
कि मैं आज से जंक फूड नहीं खाऊंगा. That is not a goal. That is not a resolution. Resolution is मैं आज से क्या खाऊंगा. I won't be lazy. ये कोई गोल नहीं है. I will go 4 times to gym every evening on Monday, Tuesday, Thursday and Friday evening. So that is a resolution. The resolution should be very specific, straightforward and a positive statement. जो नहीं करना वो resolution नहीं है, जो करना है वह resolution है. तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. बहुत बार बोलते हैं ये नहीं करूँगा, मैं लेट नहीं उठूँगा, मैं लेट नहीं उठूँगा. I will not get up late. That is not a resolution. Resolution क्या है? I will go to bed early. That is a resolution. I will go to bed early. Because if you will go to bed early, you will get up early. ठीक है? तो इस तरह से you will have to be very careful. जो resolution बनाना है, पहले तो उसको ठीक बनाएं, गलती उसी में हो जाती है. और second step is कि हम उसमें discipline को follow करें. And third step is that we should be very careful. Are we meeting our goals? Are we meeting our targets or not? And fourth and the final step is you should spend some time to rejuvenate. क्योंकि आजकल हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, हम इतने ज़्यादा मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं. छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं. कैल्शियम डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसीज हैं. और बीइंग हमारी फूड, कई लोग बोलते हैं इट इज ड्यू टू योर फूड रिस्ट्रिक्शंस, बट विच आई डू नॉट एग्री एनीवेज. पर जो भी रीजंस हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाट एम आई डूइंग फॉर माई सेल्फ केयर, व्हाट एम आई डूइंग टू रिजुविनेट माई सेल्फ. सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू मेंशन हियर. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू एक्टिविटीज which are hurting us more, which are draining our energy, and we think that those activities which we are doing will rejuvenate us. So इसको हमारे ग्रंथों में कहा गया है अविद्या. So जो चीज हम जिस चीज के लिए करते हैं और उसका रिजल्ट ऑपोजिट निकले. एक छोटा सा एग्जांपल, we spend so much time on technology, right? So we think entertainment is my privilege, it is my right. So I'm entitled to be entertained. So that is why I should use my phone. I should watch whatever I want to watch. So उससे क्या होता है, हमारे पास इलिशा है, अब ये न्यूरोलॉजी में रेजिडेंसी कर रही है, she can tell better. तो हमारा जो डोपामीन है, वो डोपामीन रश आपके ब्रेन में इतना हो जाता है कि आपकी डोपामीन डिपेंडेंसी बन जाती है, जिसको डोपामीन एडिक्शन भी बोलते हैं साइकोलॉजी में. तो आप हमेशा हर बार उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, और जब भी आप फोन से छूटते हैं तो उसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं डोपामिन फटीग. तो जो रेगुलर नॉर्मल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है. किचन में काम करना, पेरेंट्स की हेल्प करना, सिस्टर के साथ खेलना, पढ़ना, सैर करना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बोरिंग लगने लगती हैं क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो एडिक्टेड हो चुका है उस डोपामिन के. अब हम तो सिर्फ एडिक्शन सिर्फ उसी में मानते हैं जो हम लोग दूसरी चीज़ों में एडिक्टेड हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी एडिक्शन है जो टेक्नोलॉजी की एडिक्शन है. तो इसलिए हम कई बार बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत से लोग जिसको बोलते हैं सोचते हैं कि हम टीवी देखेंगे, साथ में पॉपकॉर्न और कोक लेके बैठेंगे, सो आई एम रिजुविनेटिंग. सो इट इज़ नॉट रिजुविनेशन. टेक्निकली यू आर डूइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ रिजुविनेशन. So you have to be very careful. What you do should be the real activity which will help you, which will strengthen you, which will refresh you, re-energize you, not drain you. And there are many examples, we all know. One term which is very, very common and very popular these days is called intentional idleness. Intentional idleness. आराम से अपने काउच पे, अपने फ़ोन से 20-30 फीट दूरी पे, बिना टीवी चलाए, आंखें बंद करके, बिना कुछ किए 15 मिनट बैठो, बैठ के दिखाओ. बहुत मुश्किल काम है. Intentional idleness is for each and everyone. I'm looking at Zaina, but it doesn't mean it's not for us. It's for everyone, including myself. So we should focus on intentional idleness, make it a habit every day. It is not meditation. Meditation is something different. Mindfulness is something different. बिल्कुल जिसको बोलते हैं शून्य अवस्था,
आराम से आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे बैठो, फिर आपको पता लगेगा कि हम में कितनी ज़्यादा डोपामिन एडिक्शन हुई है, कितनी घबराहट शुरू हुई। अब बार बार उस 15 मिनट में हम शायद 30 बार घड़ी देखेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज स्पेशली यंग किड्स हु आर सिटिंग इन दिस रूम, ट्राई दिस इंटेंशनल आइडलनेस, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस डेलिबरेट एक्ट ऑफ डूइंग नथिंग, दैट इज इंटेंशनल आइडलनेस। और दूसरा है माइंडफुलनेस, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। जैसे अभी हमने ओम का उच्चारण किया, आप 10 मिनट लंबा सांस भर के ओम का उच्चारण करें, ठीक है। इससे आपके 3 फायदे होंगे। एक फिजिकल फायदा होगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। एक मेंटल फायदा होगा, आपका जो माइंड है उसको रेस्ट मिलेगा। एक स्पिरिचुअल फायदा तो होगा ही, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद सुप्रीम, ठीक है, विद गॉड, विद द क्रिएटर, विद योर फादर, ठीक है ना, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। तो इसलिए ओम का उच्चारण लंबा करें, डीप ब्रीदिंग करें। बहुत सारे आजकल तो यूट्यूब और गूगल यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाट वी से, सो बॉक्स ब्रीदिंग है, साइक्लिक ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग है, अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग है। कुछ भी करें तो माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ दिन में ज़रूर करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और फूड इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जितना समय आप किचन में लगाएंगे उतना आप लंबा जिएंगे, जितना आप किचन में समय कम लगा के बाहर से सामान देंगे उतना आप कम जिएंगे, ठीक है ना। सो स्पेंड टाइम इन योर किचन, ठीक है, बट नॉट टू फ्राई स्टफ, आई मीन टू मेक समथिंग हेल्दी। So, and it is the right age for Zaina, Ziva and other children to start helping their mothers, because it is the time to learn how to cook healthy food, because it is, you are lucky that you have those parents who can teach you, who can tell you what is healthy food. So उस पे भी आप focus करें। और volunteering is something very important, it is a self-care activity। और जितनी ही हम यंग एज में वॉलंटियरिंग शुरू करेंगे उतना ही अच्छा है। और आपके तो करिकुलम में है, आई एम वेरी हैप्पी दैट इन कैनेडा यू कैन नॉट गेट हाई स्कूल सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट विदाउट डूइंग 40 आवर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड आई हैव सीन मैनी किड्स हु कंटिन्यू देयर वॉलंटियरिंग even though those 40 hours are over. So I highly recommend you that try to do one good deed per week at least. So हफ्ते में एक बार तो एक गुड डीड करें, सभी करें। तो जैसे हम भी, आई वॉज अ वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर इन माई प्रीवियस जॉब, सो उसमें क्या होता था कि द वॉलंटियर शुड कम फॉर एटलीस्ट वंस अ वीक फॉर 3 hours, सो दैट वॉज अवर मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो आपको डेफिनेटली कुछ वॉलंटियरिंग करनी है, क्योंकि उससे जो आपको आत्म संतुष्टि और शांति, जो रिजुविनेशन उससे मिलती है, जिसको हम सेल्फलेसनेस बोलते हैं, वो एक्ट जिसमें आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ दूसरे के लिए ही कर रहे हैं, दूसरे के सुख के लिए, दूसरे की हेल्प करने के लिए, दूसरे की लाइफ को एनहेंस करने के लिए और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बदले में यू डू नॉट नीड एनीथिंग। सो दैट इज कॉल्ड वॉलंटियरिंग। इट्स सो फनी, मैनी न्यू इमिग्रेंट्स कम एंड व्हेन दे वर आस्किंग फॉर वॉलंटियरिंग, तो हम उनको बोलते थे कि ठीक है यू कैन ज्वाइन, तो वो कहते थे उसके बाद जॉब मिल जाएगी, वॉलंटियरिंग करने के बाद यहाँ जॉब मिल जाएगी हमें। सो दैट इज नॉट वॉलंटियरिंग, ठीक है ना। सो यू स्टिल हैव सम सेल्फिश मोटिव, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हर चीज में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। समटाइम्स वी डू स्टफ ऑन द नेम ऑफ वॉलंटियरिंग बट इट इज नॉट वॉलंटियरिंग। सो हर चीज में यू हैव टू बी केयरफुल, और उसमें इंट्रोस्पेक्शन आपके काम आएगी। जो भी आप कर रहे हैं देखें, उस पर चिंतन करें। सो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपकी लाइफ में आपको ऊंचा उठाएंगी, आपको बेटर बनाएंगी। फर्स्ट, यू हैव टू टेक अ रेजोल्यूशन। सेकंड, यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन इज नॉट अ बाउंडेज, इट इज समथिंग विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस, फ्रीडम फ्रॉम फेलियर, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप इज इंट्रोस्पेक्शन, एंड फोर्थ स्टेप इज रिजुविनेशन, सेल्फ केयर। अगर आप इन चारों को करेंगे तो डेफिनेटली यू विल ग्रो एंड यू विल रीच न्यू हाइट्स। आई नो we usually discuss some core Vedic stuff here, but today as it was her birthday, so and I knew that they are very young, there will be many young kids in the room, so that is why I chose to just change the topic a little bit.
And I know there are more people in the room, so I would like to tell again that we meet here every month. We usually tell the dates before. So yeah, please go ahead. आपने ये जो मीडिया एडिक्शन एंड फोन एडिक्शन की बात करी, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा वर्क इतना स्ट्रेसफुल है कि उसके बाद हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हमें टीवी देखना है या हमें ब्राउजिंग करनी है या इंस्टा पोस्ट देखनी है या जो भी है. इज दैट ओके और इज दैट नॉट ओके? फिर जब वहाँ पे जाते हैं तो फिर वो एक विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. तो इसके इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं. पहला आंसर तो ये है कि उन लोगों को ये बोलिए कि उसकी बजाय वो भागें, 5 किलोमीटर भाग के आए, उससे भी उनका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा. और जो दूसरी चीज़ ये है जो हमने रेजोल्यूशन की बात की, सो इट शुडंट बी इन द नेगेटिव statement, it should be a positive statement. I will use my phone for entertainment purposes for 30 minutes per day. That is a resolution. ठीक है, उसमें अलार्म लगा के आप 30 मिनट करें. हालांकि वो भी कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ नहीं है, पर चलो फिर भी जैसे बोलते हैं ना, यू हैव टू टेपर. जो लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, दैट इज़ हाउ दे क्विट स्मोकिंग, सो दे टेपर. सो यू शुड डू टेपरिंग, क्योंकि जो डोपामिन रश है बॉडी में वो तो बढ़ता ही है टेक्नोलॉजी को एंटरटेनमेंट में जब हम यूज़ करते हैं. वो तो ख़राब है ही, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये तो आप सभी जाके गूगल कर सकते हैं. ठीक है, और आपको ये एडिक्शन ही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. ये तो अभी शुरू हुआ है 20-30 साल पहले. तभी मैंने कहा कि जेन जी और जेन अल्फ़ा तो इसी में बॉर्न हुए हैं. हम लोग तो जब बॉर्न हुए थे तब कंप्यूटर्स था भी नहीं, तो उससे पहले सारी दुनिया चल ही रही थी और सब लोग अच्छा जी रहे थे. ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है. तो हमें वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग एंड गो बैक टू बेसिक्स बेसिकली. So anyways, that's all I have to say today. I would like to request Bharat ji now to sing some bhajans for us. Sorry, and before you come Bharat ji, I would like to request Gyanesh Bhaiya. He has some small announcement for